Good morning, dear students. Welcome back to the class. We are studying the lesson fractions and decimals. We are studying the lesson fractions and decimals. In the previous lecture, we have taken this example, but this is not completed. We have stopped here our solution here, that is on a 23 upon 12. But 23 upon 12 is an improper fraction, so we need to convert it into a mixed fraction. क्योंकि 23 upon 12 एक improper fraction है, तो आपको इसे सबसे पहले mixed fraction में convert करना होगा. So what will be your answer if you convert this improper fraction into a mixed fraction? अगर आप इसे convert करोगे तो क्या आएगा आपका answer? 23 divided by 12. 23 divided by 12 is equals to how much? 23 divided by 12 is equals to, सबसे पहले आप क्या करोगे? 12 ones are 12. 12 ones are 12. Then you have to subtract this 12 from 23. 3 minus 2 is equals to 1 and 2 minus 1 is equals to 1. So you can write this 23 upon 12 as 111 upon 12. So this is your final answer. Okay, हमने ये वाला जो एग्जांपल है ये प्रीवियस लेक्चर में लिया था, जिसका आंसर हमने 23 upon 12 निकाले थे, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था. So we completed it here. Okay, now we are starting the exercise 2A. Exercise today question number 1. Okay, what is question number 1? You have to add the given like fractions. जो आपको question number 1 दिया है, आपको उसमें like fractions को add and subtract करना है. Okay, question number 1. Okay, what is your question number 1? Find the sum. Okay, you have to find the sum. Sum means addition. You have to find out the addition. What is your first question? Your first question is 7 upon 16 plus 5 upon 16. 7 upon 16 plus 5 upon 16. Okay. Okay, 7 upon 16 plus 5 upon 16. जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, फर्स्ट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन अगेन. सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है उसे एज इट इज लिखना है. दैट इज 7 upon 16 plus 5 upon 16. उसके बाद हम लोग लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं? लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है? फर्स्ट वी हैव टू राइट द डिनोमिनेटर. सबसे पहले हमको क्या करना होता है? डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना होता है. दैट इज 16. आफ्टर दैट वी ऐड द न्यूमरेटर. हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को ऐड करते हैं. दैट इज 7 plus 5. ओके, 7 plus 5. ओके, देन व्हाट इज 7 plus 5? 7 plus 5 is equals to how much? 12. ओके, देन योर आंसर इज 12 upon 16. 12 upon 16 ये आपका आंसर आया है. But first you have to check it is a proper fraction or a improper fraction. आप इसे चेक करोगे. It is an proper fraction, but it can be converted into a shortest form. और मैंने आपको ये बताई हूँ कि अगर कोई आपका आंसर शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है या वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, तो अगर आपने उसे वो नहीं किया है तो आपका आंसर रॉन्ग होगा. सो कन्वर्ट इट इनटू अ शॉर्टेस्ट फॉर्म. इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगा बोलो? 12 upon 16 is equals to how much? 12 और 16 किसके टेबल में आता है? 4 के. ओके, देन it can be written as 12 divided by 4 and 16 divided by 4. That means your answer is 12 divided by 4 is equals to 3 and 16 divided by 4 is equals to 4. So your answer is 3 upon 4. अगर आप ऐड करोगे 7 upon 16 plus 5 upon 16, your answer is 3 upon 4. Okay, I will solve only one question. Okay, मैं हर एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ. रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 2? What is your question number 2? Question number 2 is find the difference. Question number 2 is find the difference. Difference means subtraction. You have to find out the subtraction of given fractions. Okay. The question is 16 upon 5. 16 upon 5 minus 2 upon 3. Minus 2 upon 3. So first you write the question. Again आप सबसे पहले क्या करोगे? क्वेश्चन को फिर से लिखोगे. ठीक है. Now after that check whether they are like fractions or an unlike fractions. They are the unlike fractions. So you need to find out the LCM first. आपको क्या करना पड़ेगा? LCM निकालना पड़ेगा. For find
3। ये जो दोनों नंबर है वो किसी भी एक कॉमन नंबर में नहीं आते हैं, तो आप इन्हीं नंबर से डिवाइड कर दो। ओके, तो फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बट 5 के टेबल में 3 नहीं आता, तो आप 3 को क्या करोगे, एज इट इज लिखोगे। अगर वो अगर 5 के टेबल में आता तो हम डिवाइड करते, अगर नहीं आता है तो आप उसे एज इट इज लिखोगे। ठीक है, इन द नेक्स्ट ब्लॉक वी राइट दिस वन एज इट इज एंड वी डिवाइड इट हियर बाय 3, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 3 बचा है, इसलिए यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3। आपको ये डिवाइड तब तक ही करना है जब तक कि नीचे के ब्लॉक्स में 1 नहीं आता है। सो योर LCM इज इक्वल्स टू 5 into 3, that is equals to 15, that is equals to 15, that means your LCM is 15, so you have to convert the denominators into 15। आपको ये जो डिनोमिनेटर है इन्हें 15 में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करोगे, 16/5। if you have to convert this denominator into 15, आप 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको चेक करना है। आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, सो 5 3 are 15। अगर आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया हो तो आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होता है कि आप न्यूमरेटर से ही डिवाइड करो या सिर्फ डिनोमिनेटर से ही करो, आपको दोनों से करना होगा। ठीक है, आफ्टर दैट 2/3, अगर 3 को 15 बनाना है, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5, सो यू कैन मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर आल्सो बाय 5। फाइंड आउट द आंसर। 16 3s are how much, 16 3s are how much, 16 3s are 48, 16 3s are 48 and 5 3s are 15 minus 2 5s are 10 and 3 5s are 15। now they both are the like fraction, so you can subtract them directly। कैसे करोगे, डिनोमिनेटर को as it is लिखोगे and subtract the numerator, that is 48 minus 10, that is equals to 38/15। क्या ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये दोनों नंबर है किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। ये 38 और 15 किसी भी एक टेबल में नहीं आते, एंड दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो डिवाइड दिस 38 बाय 15। अगर आप 38 को 15 से डिवाइड करोगे तो फाइंड आउट करो आपका क्वोशंट क्या आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है। देन चेक व्हाट इज योर क्वोशंट एंड अ रिमाइंडर, दैट इज 15 2s are 30, 15 2s are 30, 38 minus 30 is equals to 8, 38 minus 30 is equals to 8। ओके, नाउ अगर आपको इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, हम कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। फर्स्ट वी राइट द, क्या लिखते हैं पहले, क्वोशंट। व्हाट इज द क्वोशंट, 2, then remainder is 8 and your divisor is 15। ये आपका होल नंबर है और ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, इस तरीके से आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, देन व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी सब्ट्रैक्शन ही करना है। Write down the question number 1. Question number 3. Subtract. Question number 1 is 5/14 from 9/14. 5/14 from 9/14। जो एक कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग करते हो कि 5/4 इसको लिखते हो 5/14 माइनस 9/14। आप इसे लिखते हो, अगर आपको सॉल्यूशन लिखना है तो आप इसे लिखते हो ऐसे 5/14 माइनस 9/14, जो कि रॉन्ग है। ये एक रॉन्ग मेथड है। अगर आपको बोल रहा है कि 5/14 फ्रॉम 9/14, दैट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 5/14 फ्रॉम 9/14। जो फ्रॉम के बाद होता है उसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, 9/14 को पहले लिखोगे, तो योर क्वेश्चन चेंजेस टू 9/14 माइनस 5/14। ओके, नाउ व्हाट इज योर आंसर। ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है, दे बोथ आर द लाइक फ्रैक्शंस, दे बोथ आर द लाइक फ्रैक्शंस। सो वी राइट द डिनोमिनेटर, that is 14, and then we subtract the numerator, that is 9 minus 5।
9 minus 5 is equals to 4. Then your answer is 4 upon 14. It can be converted into a shortest form. So check करो ये दोनों नंबर्स किस एक टेबल में आते हैं. तो 4 और 14 आता है 2 के टेबल में. ओके, so we divide this 4 and 14 by 2. So 4 divided by 2 and 14 also divided by 2. 4 divided by 2 is equals to 2 and 14 divided by 2 is equals to 7. So if you subtract 5 by 14 from 9 by 14, your answer is 2 by 7. अगर आप 4 by 14 तक के आंसर निकाल के छोड़ोगे तो आपको आधा मार्क भी नहीं मिलने वाला, आपको पूरा 0 मिलेगा. अगर आप जब तक कि 2 by 7 नहीं निकालोगे आपको करेक्ट नहीं मिलेगा. आपको इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है. सो जब भी आप आंसर निकालोगे जरूर चेक करना कि कहीं वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? ऐड. Note it down the question. Question number 4. Add. First question. What is the question? 11 1 by 13 plus 5 3 by 26 plus 1 7 upon 52. Okay. Now convert all the mixed fractions into an इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ जितने भी मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे. सो सॉल्यूशन इज, सब सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करना है. तो 11 1 by 13 plus 5 3 by 26 plus 1 7 upon 52. नाउ कन्वर्ट करो इसे सभी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो 13 into 11 plus 1. I will write it down. 13 into 11 plus 1 upon 13 plus 26 into 5 plus 3 upon 26 plus 52 into 1 plus 7 upon 52. Okay, now 13 into 11. 13 into 11 is equals to 143. 13 into 11 कितना होता है? 143 plus 1 144. That is 144 upon 13. Okay. Now 26 into 5. 26 5s are how much? 26 5s are 130. Okay. 130 and 3 133 upon 26. And after that 52 into 1 is a 52 and plus 7 59 upon 52. Now जितने भी यहाँ पर फ्रैक्शंस है ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस है. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे. दैट इज 13 26 52. चेक करो कि ये सारे नंबर्स किस टेबल में आते हैं. चेक करो कि ये सारे नंबर्स किस टेबल में आते हैं. ओके, ये जितने भी सारे नंबर्स लिखे दैट इज 13 26 एंड 52 ये सभी 13 के टेबल में आते हैं. ओके, सो 13 से हम डिवाइड करेंगे. ठीक है. 13 1s are 13, 13 2s are 26 and 13 4s are 52. Now this 2 and 4, ये जो 2 और 4 है ये किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं. सो वी डिवाइडेड बाय 2. तो ये जो 2 है ये 1 एज इट इज आएगा. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. अगेन 2 बचा है तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड. सो 2 1 as it is and this is 2 1s are 2. So your LCM is 13 into 2 into 2. 13 into 2 into 2, that is 13 2s are 26 into 2, that is 52. So your LCM is 52. तो आपको इन सभी का डिनोमिनेटर 52 करना होगा. तो आप क्या करोगे, 144 into 4 upon 13 into 4. Okay, now 133 into 2 upon 26 into 2. क्यों कर रहे हैं हम ये, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 52 बनाना है. तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा, 26 को 2 से. और जो लास्ट वाला है इसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर 52 है, सो हम इसे चेंज नहीं करेंगे. ठीक है.
मल्टीप्लिकेशन करो 144 into 4 is equals to how much? 144 is equals to 4 is equals to how much? 144 into 4 is equals to 432? No. 4 4s are 16. Carry 1 and 436. 436 check करो 436 आ रहा है. 144 into 4 is equals to 436. Okay. Then upon में कितना आ जाएगा 52 plus 133 into 2 that is 266 upon 52 and the last 59 upon 52. Now all these are like fractions. अब ये जितने भी आए ये सारे like fractions है, so we can add them directly. अगर वो like fractions है तो हम इसे directly add कर सकते हैं. So what will be your answer? Your answer is 436 plus 266 plus 59 upon 52. Add करो, जल्दी add करो, इसे कितना होगा बताओ. 6 and 6 are 12. 12 and 9 are 21. That means carry 2. 2 and 3 5 and 6 11. 11 and 5 16. Carry 1. That is 7. That is 761 upon 52. ये आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ये किसी भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है. एंड दिस इज एन improper fraction. Okay, this is an improper fraction, so convert it into a mixed fraction. अगर आप इसे mixed fraction में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 761 divided by 52. Okay, करो कितना आता है बताओ. 52 1s are 52. 52 1s are 52. If you subtract, your answer is 4 and this is 2, that is 241. Okay, now 52 7s are 52 7s are 2 7s are 14. Carry 1. No 52 से कितने बार जाएगा बोलो. 241 करना तो 4 ना चेक करो ये आ रहा है नहीं आ रहा. चेक करो, डिवाइड करो. So this is the wrong answer because 144 into 4 is equals to 576. Okay, 144 into 4 is equals to 576. Okay, now you can write it here 576, and if you add 576 plus 266 plus 59, what will be your answer? Your answer is 901. But it ये भी improper fraction है जो कि अगेन किसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, so हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. That is 901 divided by 52. That is 52 ones are 52. What will be your answer? That is 8 and 3. That is 381. Now 52 7s are 7 2s are 14. Carry 1. 7 5 are 35 and 1 36. Okay. 1 minus 4 7 1. Okay. So your answer is 17 upon 52. ये आपका क्वेश्चन, ये आपका रिमाइंडर और ये आपका डिवीजन. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ये जो डिवीजन आपको करना है ये ड्रॉप में करना है. ओके, आपको दिखना चाहिए इसलिए मैंने वहाँ पे किया. ओके, सो यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ ऑल द 4 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. ओके, वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.